Diringle Kargil Democratic Alliance yang le ngata apex body ngiske zungdele ngata meeting song tenok tengge jarang sama tugu sunok isang ngunla lanpok ngis zungdele gaji meeting song tenpin lanpok sing gaji Kargil ayong spintel tene Kargil ngata delegation KDA sama le skut karju tene I sumpa meeting bo tene ngaje le apex body तकरीबन संगमा योती ना सिर्फ बीजेपी ना गजे एमपी साहब को उन गजे मस्कुट ले नूर बख्श चेते को इंग्लिश को तरक्किन मन गजे एपेक्स बॉडी मेंबर संगमा देरिंगी का योंग सेरले तेरे दिशा मीटिंग न्यूज़ पे ना निजारन समा तुगी सुनोक तेरे यूटी लद्दाख यूर तेल्टिंग ने तेरे गता लद्दाख सेना ची यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ची गता योंग सेयोत तेवो गता जमहूरिया दे उसूल लंजिंग गता टीम्स लंजिंग गता मिदुक गता चिया जुना तेना तेरे चिकता तेरे गता मीमांग से थुजदे गुने बेशक ngata lenang Kargil na autonomous hill development council jete ngata council nis yot tenok innang tene tegune laga power ma nganma yot kan gun nyu a chos ngata space sig ni sig juna chikta ngata non lapsable ngata fund chat pin ngata uti sangul lale tewang met kan chos ju ngata council une recruitment rules yot pin ngata board yot pin ngata teguna ngata khwa chiga chuche hakun met pa teo space ni silo ngata major तेवल तास्ते खेलना गता युद्ध ने तेने गता मिम्यांग से थुसदे गुनांग माने इग्नोर जोस दे नेग्लेक्ट जोस जो डिसएम्पावर जोस को है तेवल सोंग पासंग माने जमहूरी निजाम जी गता ना मिदुक दिरिंग गता कजु यूटी एट सेटअप पो योद ले गता चिकता ते उतरु पूरा कोंग चिगा अमले ना यों मायों आतु गता तेने ची योद कान बो सिर्फ ताना चिगा नौकरशाही गता ब्यूरोक्रेटिक रूल जी माने मिदुक थत पर रन बचारू यूटी लद्दाख लंगाता यूटी छत थोप तेल्टिंग ने सुजी कटिन met का ngata le fan ma mangko daksa le bin jang ni jera zik tenok te fan sangma kazuk sulja kol duk ni jera samai zik sa za chigang inok le tontak chan ngata kazuk mimangs ngata phanche shan scheme charji gun na laklen chua mi dukju ina sirip ngata events kyang ne ta event management joti यूटी government bo event management joju jaga ni jera tukyu sinok lenang Kargila department sangma khak kalte pene mang project kyak duk काबेना पब्लिसिटी चोचेस माने यांग चांग ngata tontak miduk le pene mamang po lep tenok te penes kyak zo gundiring माने accountability माने miduk ngata kazuk zafta jik rules regulation jik yotte माने ngata jugu pene us kyak nya manok chahe ngata state setup indo chahe ngata UT setup indo chahe ngata hill council indo या ground level का पंचायती राज ते गुने ना ngata sirka jik onok te sirka te rules regulation zafta ngata follow chos te mastonga ta skyak ngano dring man chang duk miduk le sujia theka tangat kazuk sia last yat chang miduk le song pasang ozuk ngata system jik duk ka bena te ngata Ladakh se UT gurte chi rewaji ngata Ladakh se mimang se yot pin ngata te nangjin ji ngata setup chik masong to ta te phia te ngi jara thugi sur ngal lang je lena apex body chuk spinju tel ting ngata Kargil Democratic Alliance nang nyampung ngata zungdel la Ladakh UT gangpe ngata masla song pasang ngata tene nam chukpa tene ngata memang se Tuesday ji laga ngata UT governance administration accountability khongse te sang ngata milep te te chukpa ngata chi dotpa ji binu nispa wale te sang masla chenmu ngata 370 na 35A mekan song testing ne abrogate song testing ne chief ruskop chingata yot pinle te sangwa mekan song ngata song pasang constitutional ngata safeguard ngata hoshes duk jete tene ngal apex body thing ngata jointly te effort chonjik tangino tene stingju go meeting lena song kan bungis pe na tene Kargil Democratic Alliance nang le apex body gun tene sangma chik song te tene ngata demand sumji ngata bodkak le kawo tene ngata Ladakh UT tene yongche siane maus bena tu UT setup chingata chawo jete tena ang tang pe ka ngata yot pin le nam sukwa ngata statehood mithop ngata safeguard ang miduk ngata mimang se tuze laga wangchagun ngata leba miduk jet kan bo nispa oyot pin le statehood do badlang shat constitutional safeguard sachang ngata yong amiduk UT with legislature na ate yong amiduk tene UT with lieutenant governor without legislature benata mane chang miduk ngata safeguard le song pasang ngata 6 schedule ngata constitutional safeguard bo osa jete ngata samaj kar le tatewa kaltes ngata eteras yodna central government atera ko etera sante yodna tene 6 schedule tarje ka tene ngata constitution amendment khongs de ya schedule samajik choto yang constitution chi provision ngata te osa jerkan ngata te safeguard nispe ka ngata bor kakle
tene sumpa o tene ngata tugi shu ngata nam ji ngata parliament election chat nang lenang kargil parla ngata duria jik charuk le tena regional spera yong duk le communal spera yong duk ngata te vejaste tene lenang kargil ngata duri jik charuk zer pasang tene parliament nashast soso le pia soso kargil pia soso jos zer kan ngata zer kar le ngata teu nang nyampo sama tugi su nok tene mak jo chao tene ngata constitutional safeguard bongata hoserak zekan bekantang sama zultan ni osteno tene ote meeting ina tete ngata song tete mudda kurte ngata song karle ten ngata te jane rewa yudong ngata lenang kargil jointly ngata ban chos pinle ngata nitinan rai mos home yong jane te jane tene khonga ngata dun laborte ngata te chiga chos pin ki ma gyokspa tene I tonsa gun celsius epia home minister de tene I thusde gun ngata gyokspa spera tanga बहुत जरते रहा माँ अफसोस से स्पेरा नोक मास क्यों मैं स्पेरा है नोकले दिरिंग सुपा कोंगते वा नंगस्ताक मता नंग में चोस्ते नतंग माने माबोद है नोकले ताते वो सोंग पासन तेने दिरिंग मीटिंग बंगाजे ई का सोक्सते ले तेने ई मीटिंग नंगाजे थाक छाते ता ई वा समसिंग ता इग्नोर चोरंग ते वो गबगल ला तेने ngata माँ ठंडे छमा लोग से ले करगिल थुंडेल ला एपेक्स बॉडी नंग केडी tene ngata yongchesan tene tu sena ngata course of action ngata choko sespa te diri mitana te uthak chodle tore December ses 2 jaga 6 December jaga na lenang kargila pura chakka jam nang pura ban choches ngaje thak chote tele pura le gang pe na pura ban choches ngata Ladakh ban choches ngata tene ngispa ole tene tel ting ne tene lenang kargile ngata KDA nang apex body nang tene samsig organization orle rangra level ka mingu nang yapo contact churches ngata block level ka songte village level ka songte mi sang mobilize soste tene daksa date ngaje tan medle in nang tene mosam sabik sasgar chat ngata tene sustain vegetation churches ngaje program choste tele ka bena tene tesang munla tene ngata joint ngata public meeting sembo churches लेका चोचेस करगिल कांग चोचेस ngata काबेनाता लेना करगिल इसका ने ngata कों जोम ते ngata पब्लिक मीटिंग मा छेमोरि ngata चोचेस ले तेल टिंग ने तने तेवा न्यांतक माता ngata समा इग्नोर चेन दुगना तने सस्टेन्ड एजुकेशन चोचेस पिया तने ngaji समे दिरिंग थाक्सा चिकतांग सरले काबे तने डिटेल बो तने टिंग ने तफसील नंगे पोंगाजे चिगा चोचेस ने ओ ते ओ दिरिंग ngaje मीटिंग ना तन थाक छोतेन तेबे का तने ngaje लोथुन सोते दिरिंग निजे रातु लाई का स्पेरा बोर्टेन Ini ilting urdu na Karbala sabe ये जरा उसको नोटिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुफ्तन साहब चेयरमैन एपेक्स और इनके मेंबर्स केडीए के मेंबर्स आप मीडिया हजरात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं केडीए और एपेक्स बॉडी की ये तीसरी मीटिंग है। इससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और अगस्त की मीटिंग के बाद जिसमें एपेक्स बॉडी और केडीए ने जॉइंटली 4 एजेंडा ओवरऑल लद्दाख यूटी में लद्दाखियों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए, गवर्निंग के लिए लद्दाखी गवर्न बाय लद्दाखीज, लैंड प्रोटेक्शन के लिए, कल्चरल और एनवायरनमेंट सेफगार्ड और प्रोटेक्शंस के लिए, जॉब रिजर्वेशंस के लिए 4 एजेंडा हमारे फिक्स हुआ है और आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले एजेंडे पे हमारे स्टेटहुड है। ये स्टेटहुड ही है जिसमें लद्दाखी खुद अपने नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे और लद्दाख के लिए रूल बनाना हो, कानून बनाना हो, इनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना हो, ये सारी चीज़ें इस स्टेटहुड के अंदर लद्दाखी करेंगे। क्योंकि स्टेटहुड के अंदर आपका चीफ मिनिस्टर विद कैबिनेट आएगी और सारी डिसीजंस इनके पास होगा। तो हमारा पहला एजेंडा ये है कि लद्दाख के लिए स्टेटहुड। उसके साथ ही साथ चूँकि लद्दाख की स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं स्टेटहुड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए हमने डिमांड्स रखी थी कि 6 शेड्यूल, अगर 6 शेड्यूल्स नहीं हो सकता है, इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिजर्वेशन है, ऑन द पैटर्न ऑफ 6 शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल लद्दाखियों को सेफगार्ड दिया जाए। सेकंड हमारा ये था
इनकी एक एक्सक्यूज़ ये थी कि आपके लद्दाख में रिक्रूटमेंट के लिए, स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ के रिक्रूटमेंट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हम रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और एपेक्स बॉडी का और केडीए का ये क्लियर डिसीजंस था कि हम किसी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को नहीं मांगते हैं। अगर लद्दाखियों को देना है ऑन द पैटर्न ऑफ पीआरसी, लद्दाखियों को लद्दाखी रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स दे दें। और जो ही ये लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स आ जाए, इमीडिएटली रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो। ये दूसरी एजेंडा थी। तीसरी हमारा ये था कि लद्दाख को जब तक लद्दाख को आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स नहीं दे देंगे तो अकेले स्टेटहुड से भी ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। इन्हीं इश्यूज़ को लेकर ये 4 इश्यूज हमने रखे थे और उसमें 4th इशू हमारा था लेह एंड करगिल के लिए जब भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आती, क्योंकि पार्लियामेंट्री सीट पूरे लद्दाख के लिए एक है, ये कम्युनल जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स के लिए एक अच्छी खासी हथियार बन जाती है। तो हमने डिमांड की है लेह और करगिल दोनों के लिए सेपरेट पार्लियामेंट्री लोकसभा सीट। उसी के साथ ही साथ इसमें हमने कहा है कि जिस तरीके से एर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के 4 सीट्स थे, लद्दाख को भी राज्यसभा के 1 सीट्स दिया जाए। ये 4 इश्यूज थे। उसी के साथ आपने देखा होगा जब ये एजेंडा फिक्स हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रॉमिस किया था कि एपेक्स बॉडी और केडीए के जो भी कमेटी बन जाएगी उस कमेटी के साथ इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग होगा। लेकिन 2-3 महीने गुजर गए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। नित्यानंद राय जी यहाँ पे आए एमओएस होम, इन्होंने एपेक्स बॉडी को भी नहीं बुला लिया और केडीए को भी नहीं बुला लिया। इनसे हट के कुछ इंस्टीट्यूशंस को बुला के एपेक्स बॉडी और केडीए को तोड़ने की कोशिश की और जिसके मुखालिफत में एपेक्स बॉडी और केडीए ने पूरी लद्दाख में कॉल दी थी स्ट्राइक करने की, लद्दाख बंद की। और इसी लद्दाख के बंद के चलते हुए ये मजबूर हुए एपेक्स बॉडी और केडीए को बुलाए लेह में। और नित्यानंद जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने इन्हीं 2 इश्यूज़ को, 4 इश्यूज़ के साथ साथ इन 2 इश्यूज़ पे हमने ज़्यादा फोकस किया। हमने कहा था आप जो कर सकते हो वो है पहले रेजिडेंट सर्टिफिकेट, फिर इसके बाद रिक्रूटमेंट और उसके साथ जो कमेटी बनी है उस कमेटी का इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग। इन्होंने ये दोनों पॉइंट्स एक्सेप्ट कर ली थी और इसके बाद आपने देखा कि पूरी लद्दाख के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बजाय लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट इन्होंने इशू कर दी। नोटिफिकेशन इशू हुआ और इसके साथ सर्टिफिकेट्स भी इशू हुआ, लेकिन रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुई है। इसको लेकर हमें रिजर्वेशंस है। साथ ही साथ इन्होंने हमें कहा था कि लद्दाख के जो केडीए और एपेक्स बॉडी की जो कमेटी बनी है, जॉइंट कमेटी, होम मिनिस्ट्री के साथ बुला लेंगे। लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम सोचते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाखियों के इश्यूज़ को लेकर, लद्दाखियों के कंसर्न्स को लेकर, लद्दाखियों के डिज़ायर्स और डिमांड्स को लेकर कंसर्न भी नहीं है, सीरियस भी नहीं है और वो टालना चाहती है। इसलिए ये तीसरी मीटिंग एपेक्स बॉडी और केडीए का आज करगिल में हुआ है, जिसमें हमने डिसाइड कर लिया है कि बहुत सख्ती के साथ पूरी पब्लिक को लेके, राइट फ्रॉम मटाइन से लेकर आपके चुशुल तक, पूरी लद्दाख के पब्लिक को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताने के लिए कि लद्दाखी अब खामोश बैठने वाले नहीं हैं। काफ़ी हो गया आपके ये टाल मटोल, अब इन टाल मटोल से हमारा काम चलने वाला नहीं है। अब हम सड़क पे आ जाएंगे, अब हम धरने पे आ जाएंगे, स्ट्राइक पे आ जाएंगे, मास लेवल पे प्रोटेस्ट जारी होगी। इसीलिए आज हमने स्ट्रेटजी और हमारी जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो क्या हो, इस पे डिलिब्रेशंस किए और इस डिलिब्रेशंस के बाद जो निकल के आया, जो रिज़ल्ट निकल के आया वो ये है कि पहला हमारा 6 दिसंबर को लद्दाख बंद, राइट फ्रॉम मटाइन से लेकर चुशुल तक पूरी लद्दाख में चक्का जाम लद्दाख बंद होगी, जिसमें कोई भी मूवमेंट्स, कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं खुलेगा। इसके साथ ही साथ जो ही मौसम
हमारी फेवरेबल हो जाती है मार्च के महीने में, लेह हेडक्वार्टर लेवल पे बहुत ही मैसिव लेवल पे पब्लिक रैली होगी जिसमें केडीए के मेंबर्स जाएंगे, और करगिल हेडक्वार्टर पे बहुत ही मैसिव रैली होगी पब्लिक की। लेह के एपेक्स बॉडी के मेंबर आएंगे और एड्रेस करेंगे, और उसी के साथ ही मास लेवल पे ब्लॉक से लेकर विलेज लेवल तक इस मुहिम को ले जाया जाएगा, पब्लिक को डायरेक्ट इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा इसमें जो डिसीजन हुआ ये हुआ कि एपेक्स बॉडी और केडीए का रेगुलर बेस पे मीटिंग चलता रहा, और सबसे ज़्यादा जो फोकस हुआ हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली बीजेपी पार्टी एपेक्स बॉडी में फूट डालने के लिए, केडीए में फूट डालने के लिए, लद्दाखियों के बीच में फूट डालने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकती है, उन सारी चीज़ों की रोकथाम के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर ब्लॉक से लेकर गांव लेवल तक अपनी इस एजेंडे को, अपनी इस इश्यूज़ को, कि ये एजेंडा और इशू लद्दाख के केडीए और एपेक्स बॉडी लेके क्यों चल रही है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी फ्यूचर, हमारी मुस्तकबिल, हमारी आने वाली जनरेशन्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सेफ किया जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है, और लद्दाख की आइडेंटिटी को बचाया जा सकता है। इन सारे चीज़ों को लेकर ये स्ट्रेटेजी बनी है, और फोर्सफुली हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे। साथ ही साथ आज एक बात आपसे शेयर करते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में कल तक हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन, करगिल के जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के करगिल विंग, वो नहीं थी, और आज उनके तरफ से उनके प्रेसिडेंट मिस्टर स्कर्मा साहब यहाँ पे आए हैं। अब वो बाज़ाब्ता करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के इस बॉडी के मेंबर्स हैं, और आज के इस मीटिंग में इन्होंने अपने इश्यूज़ भी रखे, उनके जो भी कंसर्न इश्यूज़ हैं उसे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपने बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके इनके इश्यूज़ को भी रिजॉल्व कर लेगी। तो ये हमारे लिए, हम सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि करगिल पूरी तरह से, इसमें कोई मजहबी इदारा नहीं, कोई सियासी इदारा नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं है जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेंबर नहीं है, जो इस इशू के साथ मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं है। इसलिए इन इश्यूज़ को भी हम आगे लेके चलेंगे। साथ ही साथ अभी जो हमारी कंसर्न है रिक्रूटमेंट को लेकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशली यूटी गवर्नमेंट कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रही है। खुद ही इनका स्टेटमेंट है कि आपके 10,000 से लेकर 12,000 तक वैकेंसीज हैं, और इन वैकेंसीज के लिए फिलअप करने के लिए पहले इनके पास एक्सक्यूज़ ये था कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था। अब डोमिसाइल ख़त्म हो चुका है, लद्दाखियों के पास अब रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स हैं, तो अब इनके पास कोई बहाना नहीं है रिक्रूटमेंट न करने का। इसलिए हमारा डिमांड यह है कि एलजी गवर्नमेंट, जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, एलजी साहब और उनके जितने भी मेंबर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी, इन सबों को बहुत ही तेज़ी के साथ इस रिक्रूटमेंट को जितने भी वैकेंसी से फिलअप करनी चाहिए। इसमें एक कंसर्न हमारी ये है, वो कंसर्न है कि रिक्रूटमेंट में जो पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट किया है, जिसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी उस रिक्रूटमेंट के वैकेंसीज को प्रमोशंस के लिए दिया, जो टोटली हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए, कमिंग जनरेशन्स के साथ नाइंसाफ़ी है। और इस नाइंसाफ़ी को केडीए और एपेक्स बॉडी किसी भी कीमत पे कबूल नहीं करेगी और इसे रेजिस्ट करेगी, और हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। हम चाहते हैं जेन्युइनली और जस्टिस तरीके से प्रमोशंस और रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो कोटा बन सकती है, जिसमें हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ भरपूर इंसाफ हो, उसी चीज़ पॉलिसी को हम मानेंगे। इसमें जो रेशो इन्होंने सारा प्रमोशंस के लिए रखी है, उस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। साथ ही एक तीसरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, वो है आउटसोर्सिंग, यानी हमारी जितने भी वैकेंसीज है उसको आउटसोर्सिंग करके लोगों को ला के कंट्रेक्चुअल लेवल पे फिलअप करके अपनी डे टू डे मैनेजमेंट को, डे टू डे नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती है। हम टोटली इस आउटसोर्सिंग के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं रेगुलर रिक्रूटमेंट हो, और रिक्रूटमेंट जस्टिस के बेस पे
इंसाफ की बुनियाद पे हो। इन्हीं इश्यूज़ को लेकर आज हमारे ये डिलिब्रेशंस हुआ है और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख को लेकर जिस सीरियसनेस को वो दिखा रही है, जिस कंसर्न को वो दिखा रही है, और हर प्लेटफॉर्म पे प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक और निचले लेवल पे हमेशा कहती है कि हमारी प्रायोरिटी लद्दाख है, हमारी प्रायोरिटी लद्दाख ही है। तो आज वक्त आया है कि पूरी लद्दाख एक प्लेटफॉर्म पे है। लद्दाखियों को 4 डिमांड्स है, इन चारों डिमांड्स को इमीडिएटली और पूरी शद्दोमत के साथ फुलफिल करके हकीकी मानों में जो लद्दाखियों के साथ कंसर्न दिखा रही है उस कंसर्न को ग्राउंड पे शो करे और जो डिमांड्स है उसे फिल अप कर दे। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह, बाकी इसमें सिर्फ अकेला बीजेपी रह चुकी है, हमें उम्मीद है कि लद्दाख की जो बीजेपी यूनिट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझ लेगी और इनको भी ये एहसास होगा कि अब पूरा लद्दाख एक ही आवाज़ के साथ, एक ही सदा के साथ, एक ही कदम के साथ आगे बढ़ चुकी है। हमें अगर लद्दाख में रहना है तो इस आवाज़ के साथ, इस कदम के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में बीजेपी भी हमारे इस प्लेटफॉर्म में, इस कंसर्न में, इन डिमांड्स को लेकर वो भी ज्वाइन करेगी और इसके बाद आपको कहीं पे भी किसी किस्म की मुखालिफत की आवाज़ दिखाई नहीं देगी। यही बात हम आपसे करनी थी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज़। तो साहब, जिस तरह से स्टेट हुड की डिमांड और जो बाकी पॉइंट्स को लेके एक हुआ है केडीए और एपेक्स बॉडी, कहीं ना कहीं पब्लिक में कुछ कन्फ्यूजन अभी भी नज़र आता है। कहीं ना कहीं पब्लिक को समझाने की ज़रूरत है कि आखिर ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हमें कुछ कंसर्न्स लद्दाख के अंदर देखने को मिला। खासकर नुब्रा की बात करें, नुब्रा से भी हमें प्रेस स्टेटमेंट देखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के साथ यकीन है, लेकिन स्टेट हुड के साथ नहीं है, LBA विंग नुब्रा से, और खासकर ज़ांस्कार से भी इस तरह के कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है। क्या ये समझाने में कहीं मोबिलाइजेशन में कहीं कमजोरी रही है या किस तरह की टेक रहेगा आपको? नहीं, आप कह सकते हैं मोबिलाइजेशन में हमारे में कुछ कमी बेशक रही है, क्योंकि हमारा ज़्यादा वक्त जो है इस दौरान हमें इसी संगठन को, इसको मजबूत करने में और गवर्नमेंट के साथ जो वार्तालाप है उसके बारे में उसी में हमें ज़्यादा समय लगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की मीटिंग में हमने ये तय किया है कि हम ग्राउंड लेवल तक, विलेज लेवल तक, जोन लेवल तक जाएंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह जो लोग इसके बारे में जो रिजर्वेशन जो आपने जिक्र किया, नुब्रा में देखा, आपने करगिल में देखा, बेशक लोगों में ये ज़रूर है, तो उसको मिटाने के लिए हम लोगों ने कोशिश ऑलरेडी शुरू की है। जहाँ तक लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का ताल्लुक है, हमारे अंदर भी, तंजीम के अंदर भी कुछ लोगों को ये रिजर्वेशन था। इसीलिए हमने जनरल कौंसिल की मीटिंग बुलाई उससे कुछ दिन पहले, और उसमें हमने वाज़ेह किया, समझाया लोगों को, और तकरीबन सभी लोगों ने उसको समझ लिया। तो हम कोशिश करेंगे कि विलेज लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक जाके हम ये इशू है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमें पूरा यकीन है लोग समझेंगे, क्योंकि हम किसी ज़ाती मुफाद के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे, पूरे लद्दाख खित्ते के लिए, लद्दाख यूटी के मुफाद में, लद्दाख के लोगों के मुफाद में हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है लोगों का पूरा ताउन हमें मिलेगा। ये किसी एक आदमी का या एक पार्टी का इशू नहीं है, एक एपेक्स बॉडी का या एक केडीए का इशू नहीं है। ये लद्दाखियों का इशू है, लद्दाखियों के प्रेजेंट जनरेशन की इशू है, लद्दाखियों के कमिंग जनरेशन का इशू है। इसलिए शायद हो सकता है थोड़ी सी समझने में अभी हमारी तरफ से कोताही रह गई हो, कमी रह गई हो, और कुछ हो सकता है कुछ पार्टीज़, अनवांटेड पार्टीज़ इन चीज़ों को मैनिपुलेट करके लोगों के जहनों को मुशविश करने की, ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आपको दिखाई देता है कि इस कारवान में आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले हमारे करगिल के जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन, इनको रिजर्वेशंस थे, आज इनके रिजर्वेशंस ख़त्म हो गए, आज वो भी आपके साथ हैं। तो साथ ही साथ आहिस्ता दूसरे भी जिनको रिजर्वेशंस हैं, जब वो समझ जाएंगे, कन्विंस होंगे और इसकी सीरियसनेस को समझेंगे कि जो डिमांड्स लेके केडीए और एपेक्स बॉडी जा रही है, इसकी सीरियसनेस को समझेंगे, हसासियत को समझेंगे, तो यकीनन वो भी इस कारवान में शामिल होंगे। सर, अभी डिस्ट्रिक्ट के डिमांड को लेकर भी कहीं ना कहीं द्रास और ज़ांस्कार को लेकर अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि केडीए और एपेक्स बॉडी के बीच में कुछ दखल अंदाज करने के लिए इसका साजिश है? अभी डिस्ट्रिक्ट के मांग उठ रहे हैं, ये चीज़ें चल रहा है डियर, इसलिए सारे लद्दाख वासियों को
लद्दाख के फ़र्द को इन चीज़ों के बारे में होशियार रहने की ज़रूरत है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि आपको गैर ज़रूरी या जिसकी अभी उतनी अहमियत और इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़रूरी भी होंगे, अभी उनकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, उन इश्यूज़ को उठा के लोगों के बीच में वरगला कर मेन जो इश्यूज़ है आपका, जो मेजर इश्यूज़ है, जो सीरियस इश्यूज़ है, उसको बैक बर्नर पे डाल के पस पुश डाल के छोटे इश्यूज़ को आपको फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी होगा। इसलिए हम सबों को, इवन उसमें मीडिया को भी, बीइंग ए लद्दाखी, आपको भी अपनी पार्ट अदा करनी है। जो भी कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, जो भी डिफरेंसेस पैदा की जा रही है, मीडिया सिर्फ अपना नुक्ते नज़र ही न दे दे। बीइंग ए लद्दाखी, आपकी जिम्मेदारी, आपका भी फ़र्ज़ है कि सही प्रोस्पेक्टिव में लद्दाख के जो दो मेन बॉडीज़ ने, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन 4 एजेंडेस को लेके आया, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें। अगर एजुकेट और अवेयर हो तो ये जो छोटे छोटे साजिशी अनासर हैं, फूट डालो और अपनी गवर्नमेंट चलाओ, अपना काम चलाओ वाली पॉलिसी करने वाले हैं, वो हकीकत में लोगों के सामने जग जाहिर होंगे, एक्सपोज होंगे और लोगों को पता चलेगा कि कौन सी लीडरशिप और कौन सी टीम लद्दाखियों को लेकर कंसर्न है और कौन सा लीडरशिप और कौन सी टीम लद्दाखियों के नाम पे लद्दाखियों का एक्सप्लॉयटेशंस कर रहा है। फाइनल मीटिंग नित्यानंद राय के साथ जब लेह में हुआ, उसमें क्लियर करिए कहा था कि आने वाले वक्त में एक तो कमेटी बनाया जाएगा और जो डायलॉग का प्रोसेस है वो जारी रहेगा। तो फाइनल मीटिंग के बाद लद्दाख और दिल्ली का राबिता बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसीलिए आज हम लोगों ने ये मीटिंग में तय किया है कि क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया टोटली, जो नित्यानंद राय ने हमें एश्योरेंस दिया था उस पर भी अमल नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तक कि जो कमेटी फ्रेम होना था एपेक्स बॉडी और केडीए के मेंबरान को लेके, जो कि वार्तालाप में डायलॉग में शामिल होंगे, उसको भी उन्होंने अभी तक शाया नहीं किया, ऑफिशियली उसको अभी उन्होंने शाया नहीं किया। इसी के लेके हमारा ये प्रोटेस्ट है और इसी को जल्दी से अमल में लाने के लिए हम कोशिश इसीलिए कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत